देखो बशु, ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन। सांस कैसे लेंगे, खाना कैसे लेंगे, एनर्जी कैसे पाएंगे, ईटीसी। तो रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि हम कैसे छींकते हैं, कैसे हाँफते हैं, और कैसे खू करते हैं, और कैसे हमारे में स्मोक आता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब रीडिंग करिए। रीडिंग करना क्या बोल रहा, पढ़िए। Sneezing. The sudden expulsion of air from the nose without our control over it due to the irritation of nasal passage is called sneezing. Sneezing. हाँ। See figure 14. 14. We often sneezing when we inhale air containing dust, smoke, or pollen. This happens as follows: the air around us something contains various types of small unwanted particles such as dust, smoke, pollen, etc. There are some very fine hair inside our nose in the nasal passage or nasal cavity. When we inhale air, in unwanted particles present in the air usually get trapped in the air. Here present in the nasal passage. Sometimes, however, the particles of dust, smoke, and pollens etc. present in inhaled air get passed in here in the nasal passage in irritation and lining of nasal passage, as the result of which we sneezing expels all the unwanted particles from the inhaled air so that the dust-free clean air enter into our lungs. See figure 14. Please note that whenever we sneeze, we should cover our nose properly with the handkerchief so that the unwanted particles which we expel during sneezing are not inhaled by other person nearby us. मतलब क्या है समझे? स्नीजिंग मतलब होता है आछू करना, छींकना। जब हम लोग अब सांस लेते हैं तो हमारे हवा में बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल होते हैं। अनवांटेड पार्टिकल समझते हो? हाँ, अनवांटेड पार्टिकल मतलब अनचाहा कण। मतलब बहुत सारा ऐसा पार्टिकल्स भी है जो हमारा शरीर उसको रिक्वायरमेंट नहीं करता, मतलब हमारे शरीर को वो चीज़ नहीं चाहिए। हम जब सांस लेते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन हमें ऑक्सीजन के अलावा अदर गैसेज प्लस में बहुत सारे जर्म, जिसे हम लोग अनवांटेड पार्टिकल्स कहते हैं, वो हमारे नाकों में इंटर करते हैं। लेकिन वो हमारे नाक में इंटर करे उससे पहले हमारे नाकों में बहुत सारे बाल होते हैं जिसको नज़ल कैविटी बोलते हैं, और उस नज़ल कैविटी में जाकर वो बैक्टीरिया जर्म फंस जाते हैं, जिस कारण से वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता। और एक बात आप हमेशा नोट में याद कर ले कि जब भी आप छींकते हो तो आपको दोबारा उस हैंकी को यूज़ नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि जब आप छींकते हो तो आपके नाक से वो हर एक अनवांटेड चीज़ निकलता है जो कि आपके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट। जैसे तुम्हारे शरीर में एक नेक्टर नाम का वर्ड है जो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो लोग छींकते हैं ना तो उसको नेक्टी निकलता है, नकटी निकलता है, तो वो नकटी को दोबारा यूज़ नहीं करना है, नकटी वाले रुमाल को। ओके, कभी नहीं। अब आगे पढ़िए यॉर्निंग के बारे में। यॉर्निंग के बारे में यॉर्निंग क्या बोलते हैं इसको? यॉर्निंग मतलब क्या होता है? उबासी या हाफना। तो हाफना नहीं होता, उबासी बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। यॉर्निंग के बाद पढ़ो। The action of opening one mouth wind while taking a long and deep breath of air without any control over it is called yawning. See figure 15. Yawning is called ubasi and jambhai and ubasi in Hindi. A person yawns when he tired, bored, scared, overworked, feeling sleepy or
drowsy. ड्रॉसी टिक मारो। There are many theories about why people yawn. According to one theory, yawning is caused by insufficient oxygen in our body. This is said to happen as follows: when we are tired, bored, stressed, overworked, feel sleepy and drowsy, we do not breathe as deeply or we normally do. The sense of the breathing rate slowly down due to the slower breathing rate. Less oxygen of air goes to the body, which is sufficient of oxygen. Respiration, production of air. Yawning helps to breathing more oxygen out of blood, because during the yawning of the mouth open wide is to take long and deep breath in air. समझे कुछ? देखो यॉर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे उन लोग बहुत ज़्यादा मुंह फाड़ के सांस लेते हैं। वाह सांस लेता हूँ, जब उठते हैं तो वाह ऐसा होते लेते हैं। या मान लो कभी कोई इंसान होता है जो सो के उठता है या कोई भी इंसान थक के आता है, वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा मुंह फाड़ के उबासी लेता है, जिस कारण से उसके अंदर बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन इंटर करता है और हमारे ब्लड को बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो जब इंसान को जब भारी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा तो वो ऑक्सीजन चाहने के दौरान पर वो हाफता है यानी उबासी लेता है, ठीक है, अपने शरीर के ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए, ठीक है। Did you got? ओके, तो बात समझ गई। The lungs are very delicate organ. Delicate मुलायम, कोमल लिखा तो कोमल होता है। हमारा जो हार्ट है काफी कोमल और मुलायम ऑर्गन। lungs है। Incidental of the breathing of keeping us alive. The biggest enemy of our lungs is called habitat of the smoking. Smoking tobacco of the बीड़ी टिक मारो बीड़ी बोल रहा है, बीड़ी सिगरेट और lungs gradually and causes ill health. Smoking tobacco, तंबाकू smoke inside the body. The chemicals present in tobacco and damage the lungs of many. Some of the harmful effect of the smoking are the fall. First, smoking destroys our lungs tissue generally, due to which breathing become very difficult. Second, smoking causes lungs cancer. Third, smoking causes heart disease. हाँ क्या बोला? टिक मार बहुत इम्पोर्टेंट था। टिक मार बहुत नहीं, वो वाला बस टिक मारना था, नीचे वाला मारना था, नहीं मारना था। चलो कोई नहीं, मार दी। पर स्मोकिंग also damages क्या बोला था कि स्मोक में लंग्स खराब होता जानते थे, लेकिन स्मोक करने से दिल का भी बहुत सारी बीमारी होता है, ये जानने को मिला। ये बात तुम्हें पता था? नहीं। Smoking also damages our health, and non-smokers who inhale the air containing tobacco smoking kills many people. That air caused by smoking. The head of the habitat of the smoking avoided the lead of the healthy life. मतलब समझे? इसमें क्या कह रहा था? मतलब कि स्मोकिंग में देखो, पहली बात ये है, हम सब इंसान जानते हैं कि कभी देखो हमारा शरीर का जो सबसे मुलायम अंग जो है वो कौन है? लंग्स है। उस लंग्स से हम लोग काफ़ी भारी मात्रा में सांस लेते हैं, जो कि हमारे अंदर ऑक्सीजन को फिल्टर करता है। और याद रहे, खून को भी साफ कौन करता है? ऑक्सीजन। खून को साफ कौन करता है? हार्ट करता है। लंग्स करता है, याद रखना। हार्ट उसको पंप करता है, साफ कौन करता है? लंग्स करता है, याद रहेगा। खून में ऑक्सीजन कौन भेजता है? लंग्स भेजता है, याद रहेगा। जब हम लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उस टाइम हम अपने लंग्स को खराब कर लेते हैं, और लंग्स खराब होने के कारण एक्सेस क्वांटिटी में वो आपके लंग्स को डैमेज करेगा। फिर बाद में आपका लंग्स डैमेज होगा तो फिर आप वापस से सांस लेने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, दिल का दौरा पड़ेगा और फिर आप टपक जाओगे। फिर परमानेंटली डिसऑर्डर होने के कारण आप जिंदगी में अगले जनरेशन में आप किसी के बच्चे के जन्म हो गया, पता नहीं कुत्ता बिल्ली क्या बोलो, अपनी बताओ। आगे पढ़ो।
ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। पढ़ के मैं पढ़ दूँ? We have just studied that the breathing organisms of human beings Breathing organ human beings. Just like human beings are the animals such as the buffalo, dog and cat, the goat, deer, elephant, frog, lizard, snake and the bird has have lungs and breathing, so the process breathing of the respiration. This is the animal similar of that in humans. There are, however, a large number of animals which do not have lungs and breathing. Some of the animals which do not have lungs for breathing, for earthworm, fish, cockroach, grasshopper, mosquitoes, housefly and ant. The animals such as the cockroach, grasshopper, mosquito, housefly and the ant are called insects. So we can also say that insects do not have lungs for breathing. We will now describe the process of the breathing respiration in earthworm, fish and insects such as cockroach and the grasshopper etc. which do not have gills. मतलब समझे? Do not have lungs. देखो बोल क्या आ रहा है, सुनो। नॉर्मली बोल रहा है कि हमने पिछले बार पढ़ा था कि हमारा ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है, हम किस ऑर्गन सांस लेते हैं? लंग से है। हम किस ऑर्गन सांस लेते हैं? लंग से। लंग से हम लोग सांस लेते हैं। धरती पे बहुत सारे जीव है, गाय, घोड़ा, बकरी, चपाट, गधा, बैल, ये सब किससे सांस लेता है? चपाट का सांस। ये सब सांस किससे लेता है? लंग्स से। लंग्स से। लेकिन कुछ जीव धरती पे ऐसे भी है जो लंग्स के अलावा किसी और चीज से सांस लेते हैं, जैसे कॉकरोच, छिपकली, तितली, केचुआ, ये सब सांस किससे लेते हैं? अपने पीठ पे स्पाइडिकल से, बॉडी पे स्पाइडिकल से लेते हैं, होल से लेते हैं, या ट्रैकिया से लेते हैं, या फिर स्किन से लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थवर्म सांस कैसे लेता है। अर्थवर्म सांस किसे लेता है? ब्रैकेट लिख लो, स्किन लिख लो ब्रैकेट में। वो सांस किसे लेता है? त्वचा से। आगे। The earthworm breathes through its skin. See figure 17. The skin of earthworm is unique than the moist gases can easily pass through the skin of earthworm. The skin of the earthworm has a good blood. टिक मारो बोले, बहुत इंपॉर्टेंट। टिक मारो, इसको टिक मारो। हाँ, blood supply. So the earthworm absorbs the oxygen of air needed to respiration through the air to moist skin. This oxygen then transported to all the cells of the earthworm by the blood, where it is the use in respiration, production in air. The carbon dioxide produced during respiration is carried back by the blood. This carbon dioxide is expelled from the body of the earthworm through its skin. Thus, in earthworm, the exchange of gases takes place through the thin of moist skin. Frog live on the land as well as in water. Through frog have lungs and breathing. They can also breathe through their moist skin. Thus, frog is an animal which can breathe through lungs as well as its moist skin. क्या बोला ये? क्या बोला ये? बताओ, सुन लो क्या बोला है। अर्थवर्म सांस कैसे लेता है, बोलो बताओ कैसे। यार देखो, पहली बात ये है कि अर्थवर्म जो है वो ऑर्थ्रोपोडा में आता है। पढ़ा था ऑर्थ्रोपोडा में, इंसेक्टा में आता है। क्या अर्थवर्म सब ये मोलस्का पढ़ी थी, उसमें आता है। ठीक है, तो अर्थवर्म जो होता है वो काफी छोटे छोटे कीड़ा होता है, और वो सांस लेते हैं अपने, उसका जो शरीर होता है काफी चिपचिपा होता है। क्या होता है? काफी चिपचिपा होता है, जिस कारण से वो अपने शरीर में नमी के कारण उससे क्या लेता है? सांस लेता है। तो केचुआ सांस किससे लेता है? स्किन से लेता है। गुड। और जिस कारण से धरती में बहुत सारे जीव है, केचुआ हो गया, पिल्लू हो गया, चेड़ा हो गया, जोंक हो गया, सांस किससे लेता है? स्किन से। लेकिन धरती पे कुछ ऐसे भी जीव है जो कि इसके अलावा अदर देन पार्ट से सांस ले, जैसे कि वहाँ जो ये तुम्हारा मेंढक हो गया, वो पानी से भी सांस लेगा और जमीन पे भी सांस ले सकता है। वो होता है एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी, यानी वो एम्फीबियन है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना।
अब फिर बात ये रहा कि वो स्किन से भी सांस ले सकता है, लंग्स से भी ले सकता है। आपको बताएगा और तुम सांस कैसे लेता है। तो पहली बात ये, और तुम जो होता है अपने स्किन से सांस लेता है और सांस लेते ही वो किस में मिल जाता है यार, याद रखें जब भी वो सांस लेते हैं तो वो जाता है किस में, लंग्स में। लेकिन जिसके पास लंग्स ना वो किस में जाएगा, स्किन में यार सीधा जाएगा वो खून में। हमारे भी ऑक्सीजन कहाँ जाता है, खून में। तभी ना लेते जाते शरीर में। हमारे पूरे शरीर में किसी भी चीज को ले जाने और ले आने काम कौन करता है, आर्टरी वेन्स उसको भेजता है, मशीन है, मोटर है, ले कौन को जाता है, ब्लड। याद रहेगा। तो जो इंसेक्ट होता है ना, ये जो पिल्लू है, इस पिल्लू के अंदर खून होता है, उसमें जाके ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर उसे पूरे बॉडी में उसका सप्लाई करके फिर उसका यूज कर लेता है। दिस इज द प्रोसेस। ओके, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अरे समझ गए ना, ये जो पिल्लू होता है, अर्थवर्म है, वो सांस लेता है स्किन से ऑक्सीजन इंटर करता है, डायरेक्ट खून में Breathing in fish. There are many animals which are live in water. The animal live underwater have gills for breathing. Gills are the organ which help the animals living the water to use oxygen dissolved in water for breathing. Gills by projection of the skin. Gills have blood vessel for the exchange of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide. Fish live in water. The fish has special organ of breathing called gills. The gills help the fish to use oxygen which is dissolved in water in which it lives. The fish has gills on both of sides of the head. See figure 19. The gills are covered by the are not visible from outside for breathing. The fish uses the oxygen which is dissolved in water. This happens as follows. The fish breathing by taking in water through the mouth and sending it covered the gills. See figure 19. समझे कुछ? एक मिनट, अब इसमें क्या कह रहा है देखो, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको देख कर समझो। इस पिक्चर को गौर से देखो और समझो। ये पिक्चर दिख रहा है मछली का, इसमें वो क्या क्या दिख रहा है, इसका क्या क्या है? Mouth, water, gills cover. देखो जितने मछली होते हैं ना, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं, Fish. पानी में रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कि तुम रहते हो पानी में, ये रहता है पानी में। हाँ, ये पढ़ाने आ रहा होता है। हाँ, ये बोल रहा है। हाँ। तो कुछ जीव, टेल मी एन एग्जांपल ऑफ एनिमल which are found in the water or river. Fish, frog, shark, dolphin. It is so on are present on the water bodies, या फिर इसको रिवर कह सकते हो। वाटर बॉडीज क्या मतलब है, नाला का। देखो अगर तुम कहीं पे गड्ढा खोदे तो रोड पे खड्डा खोद दो, उसमें पानी भर दो, वो क्या है, वाटर बॉडी है। बड़ा सा खाई खोदा तो पानी भर दो, भी क्या है, धरती फाड़ दो और उसमें पानी भर दो, वो भी क्या है, वाटर बॉडी। छोटा सा खुरपी लिया खोद दो, पानी भर दो, क्या है, वाटर बॉडी। याद रखना, वाटर बॉडी कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिवर कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो जमीन अगर फर्क है, रिवर होने के लिए एक परफेक्ट साइज चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर एक घर जितना पानी भर दे कहीं पर तो तुम उसे डूब जाओगे, फिर तुम बोलोगे वो नदी है, पॉन्ड बोलोगे, कोई नाम दोगे ना। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए, उसमें मैं किसी डायनासोर रख दूँ, क्या डूबेगा, तो उसके लिए नदी हुआ। तो हर चीज़ वैरी करता है। अब बात है इसमें का, तो बहुत सारे धरती पर ऐसे जीव है जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। और जितने भी जीव पानी में रहते हैं उसमें क्या पाया जाता है, एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, क्या बोलते हैं, गिल्स। वो गिल्स से वो सांस लेते हैं, और गिल्स का मेन काम क्या होता है, तब वो पानी में से ऑक्सीजन को अपने अंदर कैरी करता है। और गिल्स जो होता है वो मछली के दोनों गर्दन के साइड होता है, एक साइड भी होता है और इस साइड भी होता है, और दोनों पार्ट जो होता है एक अदर देन पार्ट से कवर होता है, जिससे हम लोग वो सब गिल्स खुला दिखाई नहीं देता है। याद रहेगा, इतना ही बोल रहा है। तो बताओ मछली के बारे में क्या क्या पढ़ा।
मछली के पास सांस लेने के लिए गिल्स होता है, ये पानी में पाया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ो, आगे पढ़िए। अब आगे क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट, हमारा इसी का कुछ पॉइंट बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, उसका इंसेक्ट में रहेंगे। When water passes over the gills discover oxygen from this water. The extended oxygen extracted मतलब is इकट्ठा किया हुआ। absorbed by the blood and carried to all the parts of the fish of respiration. Release the energy of अरे देखो फिर नहीं बोला ना, ऑक्सीजन ले कहाँ जाएगा? through back by the blood into the gills for expelling into the surrounding water. This fish has no lungs, like as the exchange of gases in fish take place. The gills, some other aquatic animal like Prawn stick मार लो, prawn, crab and freshwater mussel also respire through the gills or similar structures. और यहाँ तो समझी मतलब क्या कह रहा है, पानी पाए जाने वाले मैक्सिमम जो जीव होते हैं ना, वो दिखने में ना सेम काइंड होते हैं, मतलब सेम एक तरह होते हैं। और तुमने देखा वो मैक्सिमम जो जीव है उसके आगे से मुंह क्या होते हैं, कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे ट्रायंगल शेप का या कुछ कोन शेप का आगे से बना होगा, जिस कारण से वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता है। और ये काफ़ी ज़्यादा हद तक बेटर होता है एक जीव के लिए। और तुमको मैंने पहले ही बताया, ऑक्सीजन चाहे कहीं से आए, लास्ट में कहाँ मिलेगा वो? ब्लड से, ब्लड में मिलेगा। तो वही बात मैंने बोला है, आगे पढ़ो। Most of the snails live in water and have gills for breathing. They use this and स्नेल्स सीख मारो। स्नेल्स के पता था गिल्स होता है। देखिए स्नेल्स के पता, एक मिनट ये मेरा एक मिनट, ये मेरी की तरफ डाउट है, मेरे पास एक डाउट है ये। मैंने ऑब्जर्व किया है, तुम पढ़ाई करो, मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया है। वैसे तुमसे क्वेश्चन है, ठीक है ना? वैसे तुमसे क्वेश्चन तुम गाँव में रहकर पूछता हूँ। मोस्टली जो होता है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, मैंने भी अध्ययन किया है, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि मैंने जितना भी जीव देखा है ना गिल्स वाले, वो सब साइज में क्या थे? छोटे, बड़े थे। जैसे कि मैंने देखा इतना मछली है, उसमें गिल्स पाया जा सकता है, ठीक है मानता हूँ, बट स्नेल में गिल्स कब से? ये लिखा हुआ स्नेल में गिल्स पाया जाता है, कब से? नहीं हो सकता है, मुझे ये मेरे लिए फैक्ट है यार, फैक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते इसको? एक्स्ट्रा नॉलेज। क्या है वो? देखो ये पूरा बुक का मुझे मैक्सिमम पॉइंट पता, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं था कि स्नेल को गिल होता है क्या। देखो दुनिया में हर चीज पता होता है, लेकिन कुछ छोटा चीज होता है जो हमें पता नहीं होता है कि नहीं छोटू? Who was the dog sound? हाँ दीदी कम यार, कंचना टू से आया लगता है ये। बाय बाय, गुड नाइट। मत कीजिएगा, वो हाथ तो मुझे दिख रहा है सर, अंधे नहीं है तुम्हारी तरह। बताए थे मिस्टेक एक बार होता है, 10 बार नहीं। ओके मिस्टेक अगर 10 बार होता है तो उसको देखना होगा ही 10 बार। पाछू आगे पढ़ो। रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इंसेक्ट पढ़ना था पहले हमको। तो इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट कभी देखी हो? हाँ रोज देखते हैं। कुछ नाम बता इंसेक्ट का। हाय मैरी, कुछ इंसेक्ट का नाम बताना। इंसेक्ट का? हाँ तितली, कॉकरोच, मधुमक्खी, बोलो। भेड़िया। नहीं भेड़िया नहीं, कुत्ता, बटरफ्लाई, उई और हाउस फ्लाई, फ्लाइज, बी, हनी बी। ग्रेट।
तो ये सारे के सारे क्या है, insects. ये सारे सांस किससे लेते हैं, उसके बॉडी के बहुत सारे ट्रैकियल्स होते हैं, होल्स होते हैं जो कि ट्यूब लाइक होते हैं, स्पाइडिकल्स बोलते हैं उसे, जिससे वो लंबी लंबी सांसें लेते हैं। जैसे ही वो सांस लेते हैं वो जाके उसके किससे मिल जाता है, खून से मिल जाता है। छोड़ो इसको, अब आगे बनाओ, आगे पढ़ो, आप पढ़ो इंसेक्ट के बारे में। All the insects have tiny holes on the side of their body which are called spiracles. जो मैंने अभी बताया, क्या बताया मैंने, Spiracles. क्या बताया मैंने, तो ये इंसेक्ट के उसके पीठ पे बॉडी पे, बॉडी पे छोटे छोटे बॉडी पे छोटे छोटे हॉल्स होते हैं। छेदीलाल, 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 छेदीलाल ना, बहुत सारे छेद है। बोलते इतने छेद करेंगे तुम, सांस कहाँ से लोगे, तो बोलना सांस लेंगे भी और सांस छोड़ेंगे भी, अभी बहुत सारे साइड से। अब वो हमें कीड़ा मक्खी हर जगह सांस लेंगे, हर जगह छोड़ेंगे। आगे बढ़ना, आगे बढ़ो, पढ़ना, चमत्कार नहीं बोलते, आगे बढ़ा आगे। The spiracles of the body of the insect is connected to network air tube called trachea, which of the skirt of the body in insect. The breathing of the insect take the place of the only tiny holes called spiracles. This tiny tube called trachea that happens of the as follow. The air rich in oxygen enters into the insect through the spiracles by the up down in movement. Its body there goes in the thin air tubes called trachea. From on the trachea, oxygen in air diffuses the body tissues in insect reaches of the every cell in body. There is an unlimited in respiration production of energy. Carbon dioxide produced during respiration in the cell diffuses into the trachea and carried by the spiracles where it is expelled in the process of breathing. Thus the insect of the exchange of gases occur through trachea. क्या पढ़ी मेरे को बताओ, मेरे को मतलब बताओ। Could you explain me what did you find in this line? कि कीड़ा के जो बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं उसे ट्रैकिया कहते हैं और स्पैरोकस कहते हैं। नहीं, गलत बात बोल लिखा। जिस तरह हमारे ऊपर दो छोटे छोटे छेद होते हैं उसे नाक कहते हैं, नाक के अंदर ट्यूब जुड़ा होता है जिसको नॉस्ट्रल कहते हैं, नॉस्ट्रल के अंदर भी ट्यूब उसको बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। उसी तरह कीड़ा जो होता है उसके बॉडी में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। और वो स्पाइरिकल्स उसके हर एक बॉडी पार्ट से जुड़े होते हैं जिसको ट्रैकिया कहते हैं। अब समझ में आया? तो ट्रैकिया क्या है, उसके अंदर का पाइप, और स्पाइरिकल्स क्या है, उसके ऊपर का लेयर, छेद। समझे छेदीलाल? फर्क है। हाँ, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। यस यस। और क्या बोला इसमें, जब वो सांस लेता है तो स्पाइरिकल से आते हुए ट्रैकिया में जाते हुए कहाँ मिलता है वो, बट यहाँ तो हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है। क्या हीमोग्लोबिन ब्लड अलग है? नहीं। कैसे अलग नहीं है, दोनों अलग है। हीमोग्लोबिन का खून लाल होता है, आरटीसी बोलते हैं। यो यो छुट्टी कर दे। यो 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 बोल यो यो। चलो, इंसेक्ट खत्म हो गया, लास्ट बचा है प्लांट। याद रखना इसके शरीर पे बहुत छोटे छोटे क्या है, होल्स है जिससे वो सांस लेता है ना। लास्ट respiration in plant like animal plant and need energy. The plant get energy by the process by respiration in which glucose सुनो ना, एक मिनट। एनर्जी लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? respiration. जितना भी जीव एनर्जी लेगा वो किस प्रोसेस से लेगा? Respiration. Breakdown in the process presence of oxygen of air to from carbon dioxide and water with the release of oxygen energy. This energy is used to the plant and carried out the various life process. Thus, like other living organisms, plant also respire their several plants take oxygen from of air respiration and
give out carbon dioxide. So just like कुछ नया मिल नहीं रहा है। respiration in animals, so also involve the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide. The respiration of plant Differ from animal. and that in plants each part like leaves, root, etc. can carry out respiration ठीक मारो, important है, important है, ठीक मारो। indirectly in order कहाँ है ये? what's in plant, which part which independently take in the oxygen from air, utilize it to फिर obtain वही लाइन बोल energy दिया। and give out oxygen. फिर तो इन्होंने बोल दिया Carbon भाई dioxide. खाना को यूटिलाइज करके क्या मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। We will now describe the respiration in the leaves of the root and the plant of one. यहाँ तक क्या समझे हो? रेस्पिरेशन प्लांट में क्या समझे हो? रेस्पिरेशन प्लांट में क्या समझे हो? रेस्पिरेशन प्लांट में कि जब भी हम खाना खाते हैं उसे एनर्जी प्राप्त करने रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो प्लांट में रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं, हम लोग प्लांट देखते हैं, प्लांट के अलग अलग पार्ट है, लीफ है, स्टीम है, अदर पार्ट है, जिससे बहुत सारे पार्ट से हम लोग इजीली ब्रीथ करते हैं। जैसे कि लीफ होगा, लीफ में टाइनी होल्स होते हैं जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं। और हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट में रेस्पिरेशन, देखो शरीर के हर एक पार्ट में रेस्पिरेशन होगा। जहाँ रेस्पिरेशन नहीं होगा एनर्जी नहीं बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा। तो हम लोग प्लांट के हर एक पार्ट में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, जिस कारण से हमारी एनर्जी बनता है। और एनर्जी बनने के बाद में क्या निकलता है, क्या निकलता है तुमसे? एनर्जी, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा। Respiration in leaves. The leaves of plant have Leaves, tiny not leaves. pores of their surface which are called stomata. See figure 21. The exchange of the gases oxygen, carbon dioxide in the leaves during the respiration takes place through stomata. This happens of as follow. Oxygen from there enters Oxygen to from- a leaf through stomata and reaches all the cell by the process of diffusion. टिक मारो। This, वाह, ऐसे टिक मारते हैं। oxygen is used to respiration in the cell of the leaf. The carbon dioxide produced during respiration diffuse out from the leaf into the air through the some stomata. So we can also say that the plant breathe through the tiny pores in their leaves called stomata. कुछ नया बताया इसमें, सार जी पढ़ा चुके हो। क्या था इसमें? इतना पढ़ाने के बाद इसमें कुछ नहीं था। पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है, टाइनी होल्स होता है, जिसको ना बंदर कहते हैं। जो आप है ज़्यादा बोलोगी। क्या था ये? ऐसे बोलते हैं मैडी। तो उसके अंदर टाइनी होल्स होते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नया था। टमाटर सांस लेगा, खाएगा, पिएगा, एनर्जी लेगा। एनर्जी लेने का किसमें मिल जाएगा? वो खून में। खून में क्या होता है? सेल होता है। सेल में मिलने का प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। आगे पढ़ो। अब रूट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, पढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खत्म है, उसे काम का नहीं है, इतना ही लाइन है ये। वो तो सैंपल में पढ़ा है, वो सैंपल पे तो क्वेश्चन होता नहीं, पता इतना क्या नहीं पढ़ाया सर कभी? क्या सैंपल प्रॉब्लम सर नहीं पढ़ाया क्या? वो है ही सी एक नंबर, पढ़ाने का लूट नहीं, उसको बड़ा हम बताते हैं। The root of the plant and सुनो ना, मैं तुमको बिना इसको रीड क्यों लाता हूँ। देखो रूट है, रूट के अंदर रेस्पिरेशन शरीर के हर एक पार्ट में होगा। जिस पार्ट में रेस्पिरेशन नहीं होगा वो पार्ट डेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेड कहलाएगा। याद रहेगा ना? तो रेस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। रूट में रेस्पिरेशन होता है तभी रूट का साइज बढ़ता है, और रूट का साइज बढ़ेगा तो वो प्लांट को सपोर्ट देता है। और रूट में होता है जाइलम, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। याद है कि भूल गई? अब इस पार्ट को देखो, जमीन के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रूट, और ऊपर पार्ट को बोलते हैं याद रहेगा ना? तो आगे पढ़ो। अब पढ़ो क्या बोल रहा है।
और रूट दो टाइप का होता है, टैप रूट एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट, घना रूट, फाइबर सॉरी टैप रूट सिंगल रूट और फाइब्रस रूट घना रूट। घास उखाड़े हो उसमें एक ही जड़ निकलता है यार वो। हाँ। हाँ और वो उखाड़े हो कभी? मूली, गाजर। हाँ मतलब नहीं रूट, कोई अच्छा एग्जाम्पल दो। हाँ घास उखाड़ लिए। अब तूने ये उखाड़ा कभी बरगद का पेड़ देखा है? हाँ। ऊपर घना सा निकलता है तो वो क्या है? फाइब्रस रूट। आगे बढ़ो। The root of the plant are under the ground of the root cell also need oxygen to carry out their respiration and release energy for their own use. The root obtain oxygen for breathing and respiration from the soil as follow. Air is the present in between of the particles of soil. See figure that the root of the plant take up air from the spaces between the soil particles. ये पढ़ोगी? थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। पढ़ो। Actually, the root of the plant have a very large number of tiny hair on them, which are called the root hair. The root hair are in contact with the air can the soil particles. Oxygen from air in soil particles diffuse into root hair and changes all the cells of the root where is it utilized in respiration. Carbon dioxide produced in the cell of the root during respiration goes out through the same root hair by the process of diffusion. This is the respiration in roots occur by the exchange of changes oxygen and carbon dioxide through the root hair. The potted plant is due to this oxygen is not available to the root for aerobic respiration. Under this condition the root of plant under this condition the roots of plant respire anaerobically producing alcohol. This may kill the plant. Please note the plant carry out the photosynthesis for making food only during the daytime when the sunlight is variable. On the other hand, plant carry out respiration to obtain energy during the daytime as well as the night because they require energy all the time. We will now answer the question based on the respiration taken in NCERT book. हम पूरा चैप्टर का समरी देते हैं, समझो ध्यान से। मैं पूछ रहा स्टार्टिंग से, देखो पहले बात आया था पूरा स्टार्टिंग से बोलता हूँ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन लिखो, कॉपी लिखो, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। कॉपी नहीं है आपके पास? कोई भी निकालो, दोनों कॉपी, कोई भी निकालो, कर लिख के लाना, कोई निकालो। यार मेरे तो अपने पास है नहीं, वो टेस्ट कॉपी है, मैं नहीं, बस एक पेज चाहिए। नहीं एक पेज, अरे दो एक पेज जल्दी से, नहीं दो जल्दी से लिख रहा है। एक बीच का पेज दो ना, वो टेस्ट पेज। अरे हाँ तो बीच का दो ना पेपर। हिंदी का चाहिए। प्रिंट का पेज तो यही है भाई, हम प्रिंट का पेज बाकी चलेगा। एक पेज मर जाएगा। यस, पहला लिखो रेस्पिरेशन। कोई सा भी ऐसा प्रोसेस जो हमारे शरीर में होकर हमें एनर्जी देता हो। इंग्लिश, हिंदी लिखो ना, इंग्लिश लिखवाएंगे बाद में। नहीं इंग्लिश। Any kind of process which occur inside our body and give us energy and any kind of energy that sorry काट भी करूँगा। Any kind of process, any kind of process, any kind of process, any kind of process occur in our body or cell क्या लिखे हो?
Any kind of process occur in our body in cell or cell which makes a forge, so which makes and release energy in our cell. क्या बोल रहा है, कोई सा भी ऐसा प्रोसेस जो हमारे शरीर में हो जाए, जो हमारे शरीर में होने के बाद हमें उससे क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, उसे क्या बोलेंगे, रेस्पायरेशन. याद रहेगा. अब पहला लिखो ह्यूमंस, इसमें लिखो पहला नंबर देके ह्यूमंस और स्लैश दो और लिखो ह्यूमंस जो होता है ब्रीथ करता है लंग्स से. लिखो ह्यूमंस बराबर देके लिखो लंग्स. दूसरा लिखो और एक्वेटिक में लिखो, एक्वेटिक गिल से लेता है. अब सुनो, मैंने मुझे पढ़ा रखा है तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा होगा, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना. ओके, उसको तुम बना कर लाना है इन इंग्लिश में, करोगे बट आंसर तुम दोगे इंग्लिश में. ओके, एक कॉपी निकालो चलो. हाँ तो कॉपी निकालो, मैं कुछ क्वेश्चन निकाल दूँगा. इसे मज़ा नहीं आ रहा है, सब पढ़ा दिए, 50 पढ़ा चुके हैं मुझे. सर आप ये एक्स्ट्रा क्लास में ना चुपचाप पढ़ाई करो. नहीं हटेगा. बहुत बड़ा है. पहला लिखो रेस्पायरेशन देके स्लैश दो. कुछ पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन ही लिखना है अभी. कर दो, निकला गया इसका. भौंकना. अरे लिखो ना, तुम लिखो ना, सेटिंग लिखो, लिखो रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन लिखो. रेस्पायरेशन क्या होता है बताओ. जब हम खाना खा के एनर्जी प्राप्त करते हैं. गुड. अगला लिखो रेस्पायरेशन इन प्लांट कैसे होता है. सर बैठिए ना. लो. कैसे होता है रेस्पायरेशन प्लांट में. स्टोमाटा से. प्लांट में रेस्पायरेशन होता है स्टोमाटा से, और प्लांट के जो जड़ होते हैं वो जड़ जो होता है वो मिट्टी से ऑक्सीजन लेके, हाँ मिट्टी से ऑक्सीजन लेके यूटिलाइज करके अपने ये रेस्पायरेशन को कंप्लीट करता है. ठीक है. अब चल लिखो रेस्पायरेशन इन इंसेक्ट. नेक्स्ट लिखो रेस्पायरेशन इन इंसेक्ट. ये क्लास 10th में ही पढ़ के आना तुम इसको. रेस्पायरेशन इन इंसेक्ट. हाँ. फिर अगर लिखो रेस्पायरेशन इन अर्थवर्म, जिसको हम लोग मोलस्का फैमिली बोलते हैं. याद है ना मोलस्का. इकायाडर्माटा, पॉलीफेरा, कॉलेंटेटा, टीनोफोरा, स्किलमेंथिस, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, इकायाडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा, नॉन कॉर्डेट्स. क्या लिखे हो. रेस्पायरेशन इन अर्थवर्म. रेस्पायरेशन इन फिश. डिफ BW इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. डिफरेंस बिटवीन. हाँ डिफ BW शॉर्ट में लिखो. डिफ BW B/W. पता है. Inhale and exhale. And exhale. And their process. ये काफी है. अगला लिखो स्पाइरिकल्स. Spelling. Diff between
देखो ना स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल Spiracles. SPIRACLE एंड ट्रैकिया Spelling. TRACHEA। तो स्पाइरिकल्स क्या है? होल है। ट्रैकिया क्या है? वो पाइप है जिससे जुड़ा होता है। अगला लिखो। स्नीजिंग छोड़ो, स्नीजिंग Yeah. yawning, नीचे. हाँ yawning, smoking, breathing, coughing, स्पेलिंग ठीक है ना कफ का? हाँ coughing ठीक है, वेरी गुड। हीमोग्लोबिन क्या है? Spelling. RBC कॉमा WBC कॉमा प्लेटलेट्स। ये तीनों में क्या फर्क लिख के लाना। हाँ. फिर नेक्स्ट लिखो एल्वियोली एल्वियोलर डक्ट। तीनों में क्या फर्क है लिखना है, ये क्वेश्चन आता है सब। क्या स्पेलिंग? ALVEOLI एल्वियोली LI लिखो, आई लिखो लास्ट में OLI कॉमा एल्वियोलर डक्ट ALVELOAR डक्ट हाँ. कॉमा कैपिलरी CAPILLARY। कैपिलरी याद है ना? ब्लड का टाइप होता है, एक होता है ब्लड वीजल में, एक आता है आर्टरी, एक वीन्स, और एक होता है कैपिलरी। अगले लिखो आर्टरी एंड वीन्स। लमार कैंसर लिखना, आर्टरी एंड वीन्स। लंग्स एंड लीवर में क्या फर्क है? लंग्स एंड लीवर ये सीमेंट को भी लिखवा देना, ठीक है। हाउ मसल क्रैम्प एंड प्रैक्टिकल। क्या प्रैक्टिकल? नेक्स्ट लिखो रेस्पिरेशन प्रैक्टिकल लिख के लाना है तुमको। कैसे एग्जांपल दिखाओगे? रेस्पिरेशन प्रैक्टिकल लिखो, घर से लिख के बना के लाना है तुमको। ये रेस्पिरेशन प्रैक्टिकल। बस रहने दीजिए। और लिखो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के बीच में 5 लाइंस लिखो, 5 लाइंस। हाँ. चलो हमारा 1 करोड़ क्वेश्चन हो गया है। अब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट फिनिश हो गया है। इसमें कुछ सैंपल पूछ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है एक टेस्टिव लो लेवल ABC, और तुम्हारा ये होमवर्क लिखो, होमवर्क लो, HW लिखो ना, HW लिखो ना, एक लास्ट है ये सैंपल 1 एंड सैंपल 2। बस सैंपल 1 एक ही सैंपल है, लिखो ना, खुद लिख लो ना सैंपल प्रॉब्लम। हाँ HW सैंपल प्रॉब्लम, बस एक सैंपल प्रॉब्लम। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा लीजिए जिसका तुम आंसर नहीं दे सकती हो, एक क्वेश्चन नहीं, ओपन चैलेंज ठोक देते हो, इसी में खत्म चैप्टर। तो 5 मिनट में 5 लाइन 5 वर्ड में खत्म हो गया था। बट थ्योरी पढ़ना जरूरी है ना, थ्योरी पढ़े दिमाग खुलता है। खुल गया। तो वशु स्टार्ट करते। 1 लाख का क्वेश्चन आपका ये रहा, आपका 1 लाख का क्वेश्चन है। पहले जीतते हैं तो आपको 1 लाख मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ नोट में लिखा हुआ, ठीक है। आपको बिल्कुल हाँ वही लिख के बना के ड्रॉ कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। हम तुमको एक
करोड़ का नोट देंगे, ठीक है। अब लिखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारा है, बोल रहा है, पहला पढ़ो, क्या बोल रहा है, जल्दी पढ़ो, जल्दी, टाइम नहीं था। In the process by which energy released from the digested food. जब हम लोग फूड डाइजेस्ट करते हैं तो हमें, एक मिनट, क्या है तुम्हारा ये? कुछ नहीं। जो लोग खाना खाते हैं उसे एनर्जी मिलता है, उसे क्या कहते हैं? फिर क्यों देखी तुम? किसी नहीं दिया हुआ है, देखना भी नहीं है, नहीं दिया हुआ तो कहाँ देखा? देखो आगे। मजाक कर रहा थी, कल गुस्सा ना मत, थोड़ा फन करना होता है, ठीक है ना। हाँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, समझ में आ गया मतलब, ठीक मिल जाओ। अगला वशु क्या बोल रहा है? वशु अगला क्या बोल रहा है? पंजी। यार अगला क्या बोल रहा है? Name the two gases with the exchange during respiration. रेस्पिरेशन, O2 and CO2. भाई साहब, एक बार, एक थोड़ा प्यार से चढ़ा लगता, तुमने सही आंसर दिया इसलिए, एक्सीलेंट। अगला बताओ, ट्रू फॉल्स है 1 लाख का। रेस्पिरेशन जो होता है एक कंबशन प्रोसेस है, नहीं है। हाँ, रेस्पिरेशन में जो खाना को जलाना, तोड़ना, फोड़ना, कुछ करे, हमको एनर्जी से मतलब है। एनर्जी कैन बी रिलीज्ड विदाउट तो सही है, गलत है? अगला बोल रहा है वैश्यु, ऑक्सीजन, देखो रेस्पिरेशन के दौरान जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या निकलता है? CO2, CO2 दोनों निकलता है। रेस्पिरेशन सांस लेते हैं, हाँ O2। यार, रेस्पिरेशन के दौरान हम CO2 छोड़ते, तुम्हें नहीं पता है? कितना थर्ड में? हाँ, जब लोग नाक से सांस लेते क्या लेते हैं? O2 लेते हैं, छोड़ते क्या है? The process release the B में क्या है सर? वशु अब बोल रहा है कि रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी कैन बी रिलीज इन द सेल विदाउट ऑक्सीजन, मतलब कि एनर्जी जो होता है सेल बनता है बिना ऑक्सीजन का। यार ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा एक्सरसाइज करने पर, हैवी एक्सरसाइज करने पर हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो हो जाता है। बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो हमारा चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। गुड, अगला पढ़ो। Frog breathe through lungs as well as skin. मतलब फ्रॉग अपना सांस स्किन से लेता है। स्किन और लंग्स दोनों से लेता है, लिखा हुआ है। अच्छा क्या होगा? गुड। False है lungs for breathing. False. फिश के पास लंग्स होता है ब्रीदिंग के लिए। Good. Whale and dolphin live in water and breathe through gills. मछली होता है, तो मतलब ये वेल जो है वो पानी में रह कभी क्या है, मैमल है, ठीक है, जो बच्चे देती है, सांस लेती है। Name an animal with exchange the gases to breathing. This takes place through the skin. कुछ ऐसे जीव का नाम बताओ जो अपनी स्किन से सांस लेते हो। Earthworm. लिख लो। नेक्स्ट है, कोई ऐसा जीव बताओ जो स्किन और लंग्स दोनों सांस लेता हो। Frog. 5वां नंबर Frog. फ्रॉग, वेरी गुड। छठा बोल रहा है, ऐसा जीव जो सिर्फ गिल से सांस लेता हो। Fish. 7वां बोल रहा है, नेम 1 एनिमल्स विच गेट ऑक्सीजन एंड रेस्पायर स्पाइरिकल्स। कोई ऐसा जीव बताओ जो स्पाइरिकल से रेस्पायरेशन लेता हो। Insects. नाम लिखो सर एनिमल में। क्या नाम? यार बहुत सारे इंसेक्ट है ना। क्या? कॉकरोच, हाँ, Spelling. कॉक, C-O-C के. रोच, ROACH। अगला 8वां नंबर बोल रहा है, Name an organism live without oxygen. कुछ ऐसा Worm. कोई एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। नेम एंड वन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन का जिंदा रह ले। Hair. तो हमारा आंसर क्या था? 8 का, मतलब सॉरी ये 8 का था।
हमारा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, या ब्रैकेट में उसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। भगवान ने लिखा BGA लिखो ब्रैकेट में, BGLE। हाँ BGA लिखो, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि बिना उसके भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है नेम एन एनारोब्स, कोई एक ऐसा जीव का नाम बताओ जो एनारोब्स हो। तो कॉमन सी बात है, एनारोब जीव कौन होगा? जो बिना ऑक्सीजन का यीस्ट, अमीबा। जिंदा रहेगा। लिख लो वो भी सही है। अगला क्या बोल रहा है? अगला क्या बोल रहा है? What type of respiration takes place in yeast? yeast के अंदर कौन सा respiration होता है? तो लिखो fermentation। दारू बनता है उसी से। छुट्टी कर दीजिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल। ओके बाय।